Hello students, good morning. Myself Manohar Chandelia, faculty Zoology. प्रीवियस लेक्चर में हम चर्चा कर रहे थे फाइलम मोलस्का के बारे में. तो वी हैव ऑलरेडी लर्न फाइलम मोलस्का about their specific character, its general characters, and now we start the classification of mollusca. Clear? So next we start classification of phylum mollusca. Clear? Mollusca animals are classified into 6 classes on the basis of their skeleton, on the basis of their body shape. Clear? तो ये एनिमल्स 6 क्लासेस में क्लासिफाई किए हैं. क्लास फर्स्ट मोनोप्लेकोफोरा, क्लास फर्स्ट मोनोप्लेकोफोरा. Monoplacophora animals are formed by their skeleton is formed by the single valved shell. Clear? So these are monoplacophora. 6 classes. One is monoplacophora, second polyplacophora, third scaphopoda, fourth gastropoda, fifth pelecypoda, and sixth cephalopoda. Clear? These are 6 classes in phylum mollusca. फर्स्ट क्लास मोनोप्लेकोफोरा में, इनमें आप देखें कि मोनोप्लेकोफोरा एनिमल्स हैव ए सिंगल वाल्व्ड शेल in their exoskeleton. Shell is single valved cell. Clear? उसके बाद next they have distinct head but eyes and tentacles are not present. Clear? Distinct head distinct होगा, distinct head but eyes and tentacles are absent. क्लियर? तो हेड डिस्टिंक्ट होगा लेकिन आईज और टेंटिकल्स जो है वो इसमें एब्सेंट होंगे. मोनोप्लेकोफोरा एनिमल्स हैव द कैरेक्टर ऑफ बोथ फाइलम Annelida as well as mollusca phylum. Clear? Which is the character of Annelida? They have segmental muscles in their body and they excrete their nitrogenous waste through nephridia. Clear? The presence of nephridia and presence of segmental muscles is the character of Annelida, and the presence of gills for respiration and mantle in their body is the character of mollusca. Clear? तो इसमें annelid character जो है वो कौन से होंगे? Segmental muscles present. Segmental muscles ये प्रेजेंट होंगी और उसके साथ साथ excretion through nephridia. These both characters of phylum Annelida. Clear? ये Annelida के character. Next, respiration through gills and they have mantle which wrapped over the body. Clear? तो मेंटल की प्रेजेंस और रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू हो रहा है, ये मोलस्का के कैरेक्टर. एक्सक्रीशन थ्रू नेफ्रिडिया and presence of segmental muscles, it is the character of Annelida.
क्लियर? ये एनालिड्स के कैरेक्टर, ये मोलस्कन कैरेक्टर. सो इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिडा एंड मोलस्का. क्लियर? एग्जाम्पल नियोपेलाइना. Example Neopelina, which is the connecting link between Annelida and Mollusca. Neopelina, connecting link between Annelida and Mollusca. Annelida and Mollusca. Clear? तो नियोपेलाइना कनेक्टिंग लिंक है. एक आपने एनालिड्स और आर्थ्रोपोड्स की कनेक्टिंग लिंक पढ़ी है, दैट इज पेरिपेटस. पेरिपेटस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा, एंड नियोपेलाइना इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिडा एंड मोलस्का. इट मीन्स annelids are diversified into the two phylum, such as Arthropoda and second Mollusca. Clear? And in chordate animals, reptiles are diversified in their evolution and they evolved in two another classes. Its Diapsida subclass evolved into the avids and their Synapsida subclass evolved into the Mammalia. Clear? And in annelids, they also diversify into two different phyla. Annelids are evolved into arthropods and the annelids are also evolved into mollusca. So, mollusks are not evolved from arthropoda, they are directly evolved from annelids. Clear? The Neopelina is the connecting link between annelida and mollusca. Clear? Class second, Polyplecophora. Class second, Polyplecophora. Polyplecophora animals have a single walled cell and they have 8 calcareous plates on their dorsal surface. Clear? These animals have single walled calcareous cell. Clear? They have single walled calcareous shell around their body and on the dorsal surface they have 8 calcareous plate. तो ये टाइप से जो है वो इनमें ये डोर्सल साइड है. डोर्सल सरफेस हैव 8 calcareous plate, so it is also called polyplecophora. क्लियर? यहाँ तक polyplecophora इसी बेस पर इनको कहेंगे कि इनके अंदर जो है वो 8 calcareous plate होती है. क्लियर? तो सिंगल वॉल्ड शेल होगा, 8 calcareous plate, 8 calcareous plate on dorsal surface, 8 calcareous plate on dorsal surface. Next, they have indistinct head and have no eyes and tentacles. Clear? Indistinct head, indistinct हेड. इसमें आप पहले वाले में देख रहे हैं मोनोप्लेकोफोरा में डिस्टिंक्ट हेड है बट आइज एंड टेंटिकल्स एब्सेंट है. इसमें हेड भी इनडिस्टिंक्ट होता है, डिफरेंशिएट हेड नहीं होता. तो इनडिस्टिंक्ट हेड, आइज एंड टेंटिकल्स, आइज एंड टेंटिकल्स, indistinct head, eyes and tentacles absent. Clear? उसके बाद नेक्स्ट रेड्यूला प्रेजेंट इन देयर माउथ.
तो रेडुला का एक चीज ध्यान रखें, मोनोप्लेकोफोरा में भी होंगे, पॉलीप्लेकोफोरा में भी, उसके बाद स्कैफोपोडा, गैस्ट्रोपोडा एंड सेफेलोपोडा सब में प्रेजेंट होंगे एक्सेप्ट पेलिसीपोडा के। क्लियर? तो रेडुला प्रेजेंट इन माउथ, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, रेडुला प्रेजेंट इन माउथ, तो रेडुला प्रेजेंट इन देयर माउथ। क्लियर? नेक्स्ट, माउथ में रेडुला प्रेजेंट होगा और लार्वा, ट्रोकोफोर लार्वा, ट्रोकोफोर लार्वा फॉर्म इन देयर लाइफ साइकिल। क्लियर यहां तक? तो ट्रोकोफोर इसमें लार्वा बनेगा। इसके बाद इसके एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल में काइटन, एग्जाम्पल काइटन, सी माउस, ये इसका एग्जाम्पल होगा। तो काइटन जो है वो इसका एग्जाम्पल है। काइटन कॉमन नेम, सी माउस, काइटन सी माउस। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड क्लास है, क्लास थर्ड स्कैफोपोडा, क्लास थर्ड स्कैफोपोडा। स्कैफोपोडा क्लास की स्टडी करें तो स्कैफोपोडा एनिमल्स में क्या होगा इनके अंदर? स्कैफोपोडा एनिमल्स में सबसे पहली चीज कि इनकी बॉडी जो होगी वो लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल बॉडी होगी। तो इसमें लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल बॉडी, लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल बॉडी, तो लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल बॉडी होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो उसमें क्या बताएंगे? तो फर्स्ट हो गया लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल बॉडी। एक इनके अंदर जो शेल कवरिंग होती है इनकी, वो एलिफेंट टस्क शेप जो है वो इनकी शेल में शेल कवरिंग होगी। तो शेल जो है, शेल कवरिंग होगी इनमें टस्क शेप, टस्क शेप या हाथी दांत की जैसी जो है वो इनमें शेल कवरिंग होती है। क्लियर? शेल टस्क शेप विद बोथ ओपन एंड, विद बोथ ओपन एंड। तो टस्क शेप जो है वो शेल कवरिंग होगी जिसके दोनों एंड जो है वो ओपन होते हैं। समझ गए? तो इनके अंदर जो है वो इस टाइप से, ये इस टाइप से जो है वो टस्क शेप बॉडी कवरिंग होगी। एनिमल जो है वो इनके अंदर ऐसे लॉन्ग और सिलेंड्रिकल जो है वो एनिमल इसमें पैक रहेगा। डिस्टिंक्ट हेड, आइज एंड टेंटिकल्स एब्सेंट होंगे इसमें। तो इसमें डिस्टिंक्ट हेड, डिस्टिंक्ट हेड, आइज एंड टेंटिकल्स, डिस्टिंक्ट हेड, आइज एंड टेंटिकल्स, ये इनमें एब्सेंट होंगे। क्लियर यहां तक? हेड, आइज और टेंटिकल्स जो है वो इसमें एब्सेंट है। तो डिस्टिंक्ट हेड, आइज एंड टेंटिकल्स एब्सेंट। नेक्स्ट, रेड्यूला प्रेजेंट इन देयर माउथ। नेक्स्ट, रेड्यूला प्रेजेंट इन देयर माउथ। नेक्स्ट, लार्वा, ट्रोकोफोर एंड वेलिजर लार्वा बनेगा। तो इसमें दो तरह के लार्वा फॉर्म होंगे, ट्रोकोफोर और वेलिजर लार्वा। कुछ में ट्रोकोफोर लार्वा बनेंगे और कुछ में वेलिजर लार्वा बनेंगे। तो ट्रोकोफोर और वेलिजर लार्वा बनेंगे। इसमें एग्जाम्पल स्कैफोपोडा एनिमल्स में क्या क्या होंगे? डेंटेलियम, एग्जाम्पल डेंटेलियम, डेंटेलियम टस्क शेल, टस्क शेल जो एलिफेंट टस्क इसको कहेंगे,
ये डेंटेलियम, एलिफेंट टस्क, एलिफेंट टस्क, ये डेंटेलियम हो गए। इसके बाद नेक्स्ट जो इसकी क्लास है वो फोर्थ क्लास है गैस्ट्रोपोडा, क्लास फोर्थ गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रोपोडा जो एनिमल्स होंगे, इन गैस्ट्रोपोडा एनिमल्स के अंदर क्या होता है, बॉडी टोर्सन बॉडी होती है। क्लियर यहां तक? तो बॉडी के अंदर इनमें टोर्सन प्रेजेंट होगी। और दूसरा जो है वो ये बाकी सारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, ये एक्वेटिक होने के साथ साथ कुछ एम्फीबियस नेचर के भी होते हैं, जैसे गार्डन स्नेल है, वो कहाँ होता है, लैंड पे प्रेजेंट होता है। क्लियर यहां तक? तो ये एक्वेटिक और एम्फीबियस दोनों नेचर के होते हैं, एक्वेटिक एंड एम्फीबियस, एक्वेटिक और एंड एम्फीबियस। नेक्स्ट, इन एनिमल्स के अंदर टोर्सन बॉडी होने के कारण कैसे होंगे, ये एसिमेट्रिकल होते हैं। जैसे शंख वगैरह में आपने देखा होगा ना, एकदम कोइलिंग होती है, टोर्सन हो जाती है बॉडी में, डेक्स्ट्रल कोइलिंग, सिनिस्ट्रल कोइलिंग। तो ये इस तरह की जो डेक्स्ट्रल सिनिस्ट्रल कोइलिंग हो जाती है, उसके कारण बॉडी इनकी टोर्सन बॉडी होती है। तो टोर्सन बॉडी के कारण जो है वो क्या होंगे, ये एसिमेट्रिकल होंगे। क्लियर यहां तक? तो इसमें एसिमेट्रिकल, ये एक्सेप्शन भी है, बाकी सारे बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। एसिमेट्रिकल ड्यू टू टोर्सन बॉडी, एसिमेट्रिकल ड्यू टू टोर्सन बॉडी। तो बॉडी टोर्सन होने के कारण जो है वो कैसे होंगे, ये एसिमेट्रिकल होंगे। तो एसिमेट्रिकल ड्यू टू टोर्सन बॉडी। नेक्स्ट, दे हैव डिस्टिंक्ट हेड एंड टेंटिकल्स, डिस्टिंक्ट हेड एंड टेंटिकल्स, डिस्टिंक्ट head and tentacles, distinct head and tentacles। आई जो है वो वेल डेवलप्ड में नहीं है, तो डिस्टिंक्ट हेड एंड टेंटिकल्स होंगे। उसके बाद इनके अंदर टोर्सन बॉडी के कारण बता दिया एसिमेट्रिकल होते हैं। और एक इनके अंदर भी माउथ में जो है वो रेड्यूला प्रेजेंट होगा, रेड्यूला प्रेजेंट होगा माउथ में। उसके बाद लार्वा कौन सा बनेगा, ट्रोकोफोर, ट्रोकोफोर एंड वेलिजर लार्वा। तो दोनों में ही जो है वो ट्रोकोफोर और वेलिजर लार्वा बनेगा। एग्जाम्पल इसके कौन सा होगा, पाइला, एप्पल स्नेल, पाइला कॉमन नेम एप्पल स्नेल, एप्लीशिया, एप्लीशिया सी हेयर, पाइला एप्पल स्नेल, एप्लीशिया सी हेयर। एक साइप्रिया होती है कोड़ी, साइप्रिया कोड़ी, जो आपको ध्यान होगा पुरानी इंडियन करेंसी भी है। क्लियर यहां तक? साइप्रिया जो है वो पुरानी इंडियन करेंसी भी होती है। तो ये कोडी या साइप्रिया, ये इसमें एग्जाम्पल होंगे। क्लियर यहां तक? इसके बाद आप देखें नेक्स्ट इसकी क्लास पेलिसिपोडा। तो इसमें गैस्ट्रोपोडा में जो है वो आप देख रहे हो पाइला और एप्लीसिया है, पाइला है, डोरिस, डोरिस को क्या कहेंगे, सी लेमन, और इसके अलावा साइप्रिया एकोडी। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल होंगे जो टोर्सन बॉडी वाले होंगे। क्लियर यहां तक? इसके बाद नेक्स्ट पेलिसिपोडा, क्लास फिफ्थ पेलिसिपोडा, फिफ्थ क्लास पेलिसिपोडा। पेलिसिपोडा जो एनिमल्स होंगे उनके शेल में 2 वाल्व प्रेजेंट होंगे, इसलिए जनरली इनको बाईवाल्विया भी कहेंगे। दीज आर ऑल्सो नोन एज बाईवाल्विया।
तो ये इनके अंदर जो है वो 2 वाल्व प्रेजेंट होंगे। तो फर्स्ट इसका यही हो जाएगा, 2 वाल्व प्रेजेंट इन देयर शेल। तो इनकी शेल में 2 वाल्व प्रेजेंट होंगे, तो 2 वाल्व प्रेजेंट इन देयर शेल। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या बताएंगे, तो शेल में इनके 2 वाल्व प्रेजेंट है, और उसके बाद नेक्स्ट इनकी बॉडी जो है वो कैसी होती है, एलिप्टिकल शेप में बॉडी होती है, जो डोर्सो वेंट्रली कॉम्प्रेस्ड बॉडी होती है। तो उसमें एलिप्टिकल एंड डोर्सो वेंट्रली compressed body, elliptical and dorso-ventrally compressed body, ये होगा इनमें। तो ये जनरली जो है वो कैसे होते हैं, ऐसे एलिप्टिकल होगी बॉडी और डोर्सो वेंट्रली कॉम्प्रेस्ड बॉडी होती है। डोर्सो वेंट्रली फ्लैट नहीं कह सकते इसको, कॉम्प्रेस्ड बॉडी है, थोड़ा सा दबी हुई होगी। तो ये इनमें एलिप्टिकल एंड डोर्सो वेंट्रली कॉम्प्रेस्ड बॉडी। उसके बाद नेक्स्ट इनमें क्या बताएंगे, एक इन एनिमल्स में डिस्टिंक्ट हेड, आईज और टेंटिकल्स दोनों तीनों ही एब्सेंट होंगे। क्लियर? तो डिस्टिंक्ट हेड, आईज एंड टेंटिकल्स, डिस्टिंक्ट हेड, आईज एंड टेंटिकल्स, ये तीनों ही एब्सेंट होंगे। तो डिस्टिंक्ट हेड, आईज एंड टेंटिकल्स एब्सेंट। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या बताएंगे इसमें, तो एलिप्टिकल हो गए, डोर्सो वेंट्रली कॉम्प्रेस्ड बॉडी हो गई, डिस्टिंक्ट हेड, आईज एंड टेंटिकल्स एब्सेंट। उसके बाद रेडुला एब्सेंट होगा, रेडुला एब्सेंट। एक यही क्लास ऐसी क्लास है जिसमें रेडुला एब्सेंट है, बाकी सब में रेडुला प्रेजेंट होता है। क्लियर? यहां तक एक पर्ल इंडस्ट्री के पर्पज से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर पर्ल इंडस्ट्री। पर्ल प्रोडक्शन जो होता है वो इन्हीं की शेल कवरिंग से पर्ल का प्रोडक्शन होता है, तो पर्ल इंडस्ट्री के पर्पज से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। क्लियर? यहां तक तो ये इनमें पर्ल इंडस्ट्री के पर्पज से इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें लार्वा जो बनेगा वो वेलिजर एंड ग्लोचिडियम लार्वा बनेंगे, वेलिजर एंड ग्लोचिडियम लार्वा, वेलिजर एंड ग्लोचिडियम लार्वा बनेंगे इसके। उनमें ट्रोकोफोर और वेलिजर लार्वा बन रहे थे, इनमें वेलिजर एंड ग्लोचिडियम लार्वा बनेंगे। क्लियर? यहां तक तो ये इसमें पेलिसीपोडा में हो गए। पेलिसीपोडा में एग्जाम्पल यूनियो, शीमसल, यूनियो शीमसल होते हैं, और इसके अलावा जो है वो इनमें पिंकटाडा, पिंकटाडा का कॉमन नेम पर्लोएस्टर, पिंकटाडा पर्लोएस्टर। क्लियर? यहां तक ये इसके एग्जाम्पल होंगे। और इसके बाद जो है वो नेक्स्ट और लास्ट क्लास जो है वो इसमें पढ़ेंगे क्लास 6th सेफेलोपोडा। 6th क्लास जो है वो इसकी सेफेलोपोडा। सेफेलोपोडा जो है वो इसमें देखिए मोलस्का की एक एक्सेप्शनल टाइप की क्लास है, जिसमें मोलस्का के कई डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर जो है वो, जिसमें मोलस्का में कैरेक्टर नहीं हो, ऐसे कैरेक्टर भी इसमें देखने को मिलते हैं। जैसे सेफेलोपोडा एनिमल्स में जो है वो एक्सो के साथ साथ एंडोस्केलेटन भी प्रेजेंट होता है और स्केलेटन एब्सेंट भी होता है। जैसे ऑक्टोपस है उसमें स्केलेटन होता ही नहीं है। क्लियर? यहां तक इसके अलावा कुछ एनिमल्स में जो है वो इनके अंदर एंडोस्केलेटन प्रेजेंट भी होता है। क्लियर? यहां तक तो इसमें पहली चीज तो यही हो जाएगी एक्सो एंड एंडोस्केलेटन, एक्सो एंड एंडोस्केलेटन, एंड स्केलेटन ऑल्सो एब्सेंट। कुछ में स्केलेटन एब्सेंट भी है। समझ गए? नोटिलस जो होता है उसके अंदर
इसमें स्केलेटन एंडोस्केलेटन होता है, ऑक्टोपस में स्केलेटन एब्सेंट ही होता है, तो एक्सो एंड एंडोस्केलेटन और ऑल्सो स्केलेटन एब्सेंट। एक इनके अंदर जो मस्कुलर फुट जो होते हैं इनके, वो इनके लार्ज आर्म्स में मॉडिफाइड हो जाते हैं। और ये आप ध्यान रखें, मोलस्का में सबसे लार्जेस्ट जो एनिमल होते हैं, इन्वर्टिब्रेट में ही देख लें आप पूरे ग्रुप में, इन्वर्टिब्रेट एनिमल्स जो होते हैं इनमें सबसे लार्जेस्ट जो एनिमल्स होते हैं वो मोलस्का के सेफेलोपोडी होते हैं। क्लियर? यहां तक? जो ऑक्टोपस वगैरह जो है वो इनमें लार्जेस्ट इन्वर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं। क्लियर? तो ये इनके अंदर इनके मस्कुलर फुट modified into long arms, muscular foot modified into long arms। तो ये इनके मस्कुलर फुट जो है वो लॉन्ग आर्म्स में मॉडिफाइड हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इसमें ये बता दिया इनमें मस्कुलर फुट मॉडिफाइड इनटू लॉन्ग आर्म्स। नेक्स्ट, डिस्टिंक्ट हेड, आईज एंड टेंटिकल्स आर प्रेजेंट। टेंटिकल्स कुछ में होते हैं, कईयों में नहीं भी होते। तो डिस्टिंक्ट हेड एंड आईज। तो नेक्स्ट, डिस्टिंक्ट हेड एंड आईज, डिस्टिंक्ट हेड एंड आईज। तो डिस्टिंक्ट हेड एंड आईज होंगे। रेड्यूला प्रेजेंट होगा, रेड्यूला प्रेजेंट। एक इनके अंदर जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम भी अपने आप में एक एक्सेप्शनल टाइप का होता है। बाकी सारे मोलस्क में ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इनमें क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो नेक्स्ट जो है वो इसमें आप देख सकते हैं क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आप देख रहे हो स्केलेटन में भी एक्सेप्शन है और सर्कुलेटरी सिस्टम में भी एक्सेप्शन है। क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ये क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और एक मोलस्का में जो है वो यूजुअली इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, लेकिन सेफेलोपोडा में डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है जिसमें कोई लार्वा नहीं बनते। क्लियर? यहां तक? जो लास्ट मैंने पॉइंट लिखवाया था उसमें बताया था कि डेवलपमेंट जो होता है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो डायरेक्ट केवल सेफेलोपोडा में ही है, बाकी सब में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर पूछा जाए तो क्या बताओगे कि मोलस्का में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, क्योंकि मोस्टली क्लासेस में जो है वो लार्वा बन रहा है। क्लियर? यहां तक? सेफेलोपोडा में केवल डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। समझ में आ गई? फर्टिलाइजेशन भी जो है वो जनरली क्या होता है, ये जनरली इसमें आपको बताया था यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल, लेकिन मोस्टली यूनिसेक्सुअल होंगे। क्लियर? यहां तक? तो एनसीईआरटी में जो मोस्टली जिन क्लासेस के अंदर एनिमल्स जो आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसके कैरेक्टर दिए हैं। समझ में आ गई? तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो क्या होता है, वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, लेकिन कुछ एनिमल्स इनमें बाइसेक्सुअल भी होते हैं। क्लियर? यहां तक? तो ये इनमें क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट इसमें एक डायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट मीन्स कोई लार्वा नहीं बनेगा। क्लियर? इसमें एग्जाम्पल जो है वो कौन कौन से हो सकते हैं? एग्जाम्पल जो है वो सेफेलोपोडा में ऑक्टोपस, कॉमन नेम डेविल फिश। तो इसमें एग्जाम्पल जो है वो अगर आप देखें तो ऑक्टोपस है और सीपिया, लोलिगो, ये इसके एग्जाम्पल होंगे। एग्जाम्पल ऑक्टोपस, सीपिया एंड लोलिगो। तो ऑक्टोपस, सीपिया एंड लोलिगो ये इसके एग्जाम्पल होंगे। क्लियर? यहां तक? एक नोटिलस है, ये भी इसी में आएगा। तो ये आप देख रहे हो सारा मोलस्का का क्लासिफिकेशन है। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया बेटा? अब मोलस्का के क्लासिफिकेशन के बाद हम नेक्स्ट फाइलम की चर्चा करेंगे। इट इज द इकाइनोडर्मेटा फाइलम। तो नाउ वी स्टार्ट फाइलम इकाइनोडर्मेटा। Now we start phylum Echinodermata.
इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में ये 3 टर्म्स है, इकाइनस प्लस डर्म प्लस एटा। क्लियर? इकाइनोडर्मेटा कंसिस्ट ऑफ इकाइनस plus derm plus eta. It means echinus spines, derm skin, and eta bearing. So the invertebrate animals which have or which possess the echinus or spines in their skin are included in phylum Echinodermata. Clear? What is echinoderms? The animals, invertebrate animals which possess spines in their skin, which are included in phylum Echinodermata. Clear? Echinodermata is ए मैराइन एनिमल्स का ग्रुप है ये, जिसमें सारे के सारे जो है वो मैराइन एनिमल्स को इंक्लूड किया गया है। एंड इट प्रपोज्ड बाय जैकोब क्लीन, इकाइनोडर्मेटा फाइलम कॉइन्ड बाय जैकोब क्लीन। तो आर्थ्रोपोडा फाइलम कॉइन्ड बाय वॉन सिबोल्ड एंड मोलस्का कॉइन्ड बाय जॉनस्टन, whereas Echinodermata phylum is coined by Jacob Klein. Clear? Jacob Klein ने इस फाइलम को एस्टेब्लिश किया था, ये नाम दिया था किस बेस पर? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पाइंस इन देयर स्किन। क्लियर? तो इन स्पाइंस, कैलकेरियस स्पाइंस और कैलकेरियस ओसिकल्स जो है वो इनकी बॉडी में एंडोस्केलेटन बनाती हैं। तो ऐसे एनिमल्स जो है वो सारे इकाइनोडर्मेटा में इंक्लूड किए गए। क्लियर? जनरल कैरेक्टर्स, तो इकाइनोडर्मेटा का स्पेसिफिक कैरेक्टर जो है वो एक तो क्या हो जाएगा कि इनकी स्किन में स्पाइंस या स्पिक्यूल्स जो है वो इसमें प्रेजेंट होंगे। तो कैलकेरियस स्पाइंस जो है वो इनकी स्किन में प्रेजेंट होते हैं। और दूसरा इसके साथ साथ दे हैव वाटर वस्कुलर सिस्टम। क्लियर? तो प्रेजेंस ऑफ वाटर वस्कुलर सिस्टम एंड प्रेजेंस ऑफ स्पाइंस इन देयर स्किन इज द स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ इकाइनोडर्मेटा। नाउ वी लर्न अबाउट द जनरल कैरेक्टर ऑफ इकाइनोडर्मेटा। क्लियर? जनरल कैरेक्टर्स में आपने जनरली जो है वो स्टडी की है, जो कॉमन कैरेक्टर आप पढ़ते आ रहे हो पिछले कुछ फाइलम में, वही कंपैरेटिवली इसमें पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्क्राइब अबाउट द हैबिटेट। तो दीज एनिमल्स आर सॉलिटरी एंड एक्सक्लूसिवली मैराइन। क्लियर? सॉलिटरी होंगे एंड दीज आर एक्सक्लूसिवली मैराइन। नो एनी इकाइनोडर्म्स फाउंड इन फ्रेश वाटर और फाउंड इन लैंड हैबिटेट। क्लियर? ऑल आर marine animals. Clear? These are exclusively marine and solitary animals. Next, level of body organization, organ system level of body organization. These are the common character. Organ system level of body organization. Next, according to germ layer and symmetry, these are triploblastic and radial symmetrical. Their larvae are radial symmetrical. Their larvae are bilateral symmetrical and adult are bilateral. Their larvae are bilateral symmetrical and adult are radial symmetrical. Clear? ये इकाइनोडर्मेटा के अंदर ही ऐसा स्पेसिफिक पॉइंट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा बाकी सब में जनरली जो है वो लार्वा और एडल्ट सेम सिमेट्री रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर यहां तक? बट इन इकाइनोडर्मेटा देयर लार्वा आर bilateral symmetrical and their adult are radial symmetrical. क्लियर यहां तक? तो सिमेट्री में डिफरेंस,
एंड सीलोम में. क्लियर? On the basis of coelom, these are enterocoelomate and deuterostomes. इससे पहले तक आर्थ्रोपोडा मोलस्का तक हमने लर्न किया है सीलोम कैसी थी, साइजोसीलोम, एंड दीज आर प्रोटोस्टोम्स. क्लियर? हेलमिंथिस, उसके बाद हेलमिंथिस, Annelida, Arthropoda and Mollusca. These are protostomes. But echinodermates are deuterostomes and enterocoelomate. The coelom arise from the outpocketing of archenteron. So this type of coelom is enterocoelom. Clear? These are enterocoelomate and these are enterocoelomate and deuterostomes. Enterocoelomate and deuterostomes. क्लियर? यहां तक ये डिफरेंट कैरेक्टर आ गए जो आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का में क्या थे, साइजोसीलोमेट एंड प्रोटोस्टोम्स. दीज आर एंटेरोसीलोमेट एंड ड्यूटेरोस्टोम्स. क्लियर यहां तक? तो ये इसमें एंटेरोसीलोमेट और ड्यूटेरोस्टोम्स. उसके बाद नेक्स्ट ये सीलोम का कैरेक्टर हो गया. बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान ड्यू टू द कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल. क्लियर? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान. Next, their skeleton, their endoskeleton made up of calcareous spines or calcareous ossicles. Clear? यहां तक जनरली एंडोस्केलेटन जो है वो किससे बन रहा है, calcareous ossicles and calcareous spines. Clear? Next, endoskeleton made up of calcareous ossicles, calcareous ossicles and calcareous spines. Endoskeleton made up of calcareous ossicles and calcareous spines. Their endoskeleton is made up of calcareous ossicles and calcareous spines. Next, body is star-shaped or cylindrical. Cylindrical body in Holothuria and star-shaped body in Asterias. Disc-like body होती है Echinus में. Clear यहाँ तक? तो different type of body shape होंगे. तो body shape, body disc-like, body disc-like, star shape, body disc-like, star shaped or cylindrical, body disc-like, star shaped and cylindrical body. Clear? तो body एंडोस्केलेटन बता दिया, कैल्केरियस ओसिकल्स और स्पाइन से बना है. बॉडी डिस्क लाइक, स्टार शेप्ड एंड सिलिंड्रिकल. सिलिंड्रिकल इन होलोथुरोइडिया, स्टार शेप्ड इन एस्टेरॉइडिया, डिस्क लाइक इन इकाइनोइडिया. क्लियर? तो ये इनमें बॉडी शेप होगी. उसके बाद नेक्स्ट लोकोमोशन. लोकोमोशन थ्रू आर्म्स एंड 2 फीट. आर्म्स और आर्म्स के अंदर जो 2 फीट होते हैं इनके, इनसे लोकोमोशन करेंगे. क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट इनमें डाइजेशन के लिए कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल विच में बी स्ट्रेट और कोल्ड एलिमेंट्री कैनाल. क्लियर? तो डाइजेस्टिव सिस्टम में कंप्लीट elementary canal which is
which may be straight, and coiled. तो ये इसमें कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होगी, और ये कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल जो है वो कैसी होती है? कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल विच मे बी स्ट्रेट और मे बी coiled. क्लियर? माउथ ऑन oral surface and anus on aboral surface. क्लियर? यहां तक दो सरफेस बन जाएंगी. अगर बॉडी फ्लैट या कॉम्प्रेस्ड बॉडी है तो भी उनके अंदर कोइल्ड एलिमेंट्री कैनाल होगी, जिसकी एक सरफेस पर, ओरल सरफेस पर माउथ और एबोरल सरफेस पर एनस प्रेजेंट होगा. क्लियर यहां तक? तो माउथ ऑन ओरल सरफेस, माउथ ऑन oral surface and anus, mouth on oral surface and anus on aboral surface, anus on aboral surface. Oral surface is ventral surface and aboral is dorsal surface. Clear? Their ventral surface is oral surface and dorsal surface is aboral surface. Clear? तो माउथ ऑन ओरल सरफेस एंड एनस ऑन एबोरल सरफेस. क्लियर? तो ये इसमें माउथ एंड एनस की लोकेशन होगी. उसके बाद नेक्स्ट क्या बताएंगे इसमें? तो ये इसमें एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड हो गया. एक इनके अंदर जो ओरल सरफेस है या वेंट्रल सरफेस है, उस वेंट्रल या ओरल सरफेस पे रेडियल ग्रूव्स प्रेजेंट होंगी. दीज आर ambulacral groove from where they are 2 feet out from the body and they help in respiration as well as locomotion. Clear? तो ये इसमें जो है वो ओरल सरफेस पर, तो वेंट्रल और ओरल सरफेस पर, वेंट्रल और ओरल सरफेस पर रेडियल ग्रूव प्रेजेंट होंगी. रेडियल ग्रूव, तो ये इसमें वेंट्रल और ओरल सरफेस पर रेडियल ग्रूव प्रेजेंट होंगी, और इन रेडियल ग्रूव को क्या कहेंगे? एम्बुलेक्रल ग्रूव. रेडियल ग्रूव प्रेजेंट होंगी. दीज आर एम्बुलेक्रल ग्रूव फ्रॉम वेयर 2 feet extend out which help in respiration and locomotion. क्लियर? तो ये इसमें इसके वेंट्रल एंड ओरल सरफेस पे एम्बुलेक्रल ग्रूव प्रेजेंट होंगे. एंड नेक्स्ट दे हैव ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ वाटर वस्कुलर सिस्टम. दे हैव स्पेसिफिक टाइप ऑफ वाटर वस्कुलर सिस्टम, which help in respiration, excretion and locomotion. Respiration, locomotion and excretion. Their water vascular system is help in respiration, locomotion and excretion. Clear? तो इनसे ये रेस्पायरेशन कर सकते हैं, एक्सक्रीशन और लोकोमोशन कर सकते हैं. क्लियर यहां तक? तो इनके अंदर किस तरीके से होता है वाटर वस्कुलर सिस्टम जो है वो जनरली इसमें स्टेप्स जो है वो इनकी बॉडी में ये स्टेप से वाटर वस्कुलर सिस्टम जो है वो इसमें प्रेजेंट होगा. ये वाटर वस्कुलर सिस्टम
ये स्टेप्स जो है उसमें उसके ये चलेंगे, पूरी जो आर्म्स होती हैं सारी आर्म्स में स्टेप से ये वाटर वास्कुलर सिस्टम चलता है। क्लियर? यहां ऐसे मैड्रिपोराइट होगा फनल शेप की, और ये इससे स्टोन कैनाल आती है, और ये स्टोन कैनाल इसमें ओपन होती है रिंग कैनाल में। क्लियर? तो पैसेज जो होता है इसमें वो क्या चलेगा, इसमें ये इसका पैसेज है, तो इस पैसेज में या वाटर फ्लो का पाथवे है, इसमें ये इसकी मैड्रिपोराइट होती है, यहां इट इज मैड्रिपोराइट स्टोन कैनाल, मैड्रिपोराइट, then stone canal open into ring canal open into radial canal, ring canal open into radial canal, then radial canal open into lateral canal, it open into lateral canal, and at last lateral canal open into 2 feet। क्लियर? तो इस टाइप का जो है वो इनमें वाटर वास्कुलर सिस्टम जो है वो चलता है, जिससे वाटर किससे एंटर करेगा बॉडी में, मैड्रिपोराइट से एंटर करता है। यहां इनके अंदर जो है वो फूड उसके साथ जो है वो वाटर मैड्रिपोराइट से एंटर करके स्टोन कैनाल में आ रहा है, स्टोन कैनाल टू रिंग कैनाल टू रेडियल कैनाल, देन रेडियल कैनाल टू लेटरल कैनाल टू 2 फीट। इस तरीके से जो है वो इनमें वाटर का फ्लो जो है वो चलेगा। फर्स्ट मैड्रिपोराइट से एंटर करता है, मैड्रिपोराइट, देन मैड्रिपोराइट टू स्टोन कैनाल, मैड्रिपोराइट टू स्टोन कैनाल, एंड स्टोन कैनाल टू रिंग कैनाल, स्टोन कैनाल टू रिंग कैनाल, एंड रिंग कैनाल टू रेडियल कैनाल, ring canal to radial canal, then radial canal to lateral canal, and finally reach to the 2 feet। क्लियर? यहां तक इस तरीके से जो है वो इसमें वाटर का फ्लो चलता है। तो ये वाटर वास्कुलर सिस्टम की प्रेजेंस है, ये भी इकाइनोडर्मेटा का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है, और इसके साथ साथ जो है वो इसमें इनके अंदर जो है वो कैल्केरियस स्पाइन्स की प्रेजेंस भी इकाइनोडर्मेटा का स्पेसिफिक कैरेक्टर है। तो ये हो गया इनमें एक वाटर वास्कुलर सिस्टम बता दिया। वाटर वास्कुलर सिस्टम हेल्प इन रेस्पिरेशन, लोकोमोशन एंड देयर एक्सक्रीशन। क्लियर? तो ये 2 फीट बाहर निकलेंगे, वाटर फिलिंग के कारण ये 2 फीट बाहर निकलेंगे और इसको आगे लोकोमोशन करवाने में हेल्प करेंगे। क्लियर यहां तक? तो लोकोमोशन जो है वो इसमें किससे हो रहा है, आर्म्स एंड 2 फीट से लोकोमोशन कर सकते हैं। डाइजेशन के लिए आपको मैंने बता दिया कि कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होगी। रेस्पायरेशन जो है वो इसमें 2 फीट के अलावा और किससे होता है, तो रेस्पायरेशन थ्रू डर्मल पैपिली, डर्मल पैप्यूली से रेस्पायरेशन करेंगे। कुछ में जो स्किन के ऊपर जो है वो क्या होती हैं, थोड़ी थोड़ी इनमें गिल्स टाइप जो है वो स्ट्रक्चर बाहर की तरफ निकली रहेंगी। दीज आर डर्मल पैप्यूली, जिनाइटल बर्सा, जिनाइटल ऑर्गन होगा इसका, डर्मल पैप्यूली, जिनाइटल बर्सा, 2 फीट गिल्स एंड क्लोइकल ट्री। जैसे होलोथूरिया में जो है वो क्लोइका होता है और ये ब्रांच्ड क्लोइका होता है, उसको क्या कहेंगे, क्लोइकल ट्री।
कुछ एनिमल्स में क्लोइकल ट्री या रेस्पिरेटरी ट्री से जो है वो रेस्पिरेशन करेंगे। क्लियर यहाँ तक? तो रेस्पिरेशन थ्रू डर्मल पेप्यूली, जेनाइटल बर्सा, ट्यूब फीट, गिल्स एंड क्लोइकल ट्री, इनसे रेस्पिरेशन करेंगे। उसके बाद एक्सक्रीशन के लिए इनमें कोई बॉडी ऑर्गन्स नहीं होता। क्लियर यहाँ तक? तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन एब्सेंट होगा, केवल वाटर वस्कुलर सिस्टम से कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो ये बाहर निकाल सकते हैं। उसके बाद इनके अंदर जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन एब्सेंट, एक्सक्रीटरी ऑर्गन एब्सेंट होगा, एक्सक्रीटरी ऑर्गन एब्सेंट। उसके बाद नेक्स्ट सर्कुलेशन किस टाइप का होगा? ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम विच डिफरेंशिएट इनटू टू पार्ट्स, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, open blood circulatory system which comprises of two parts. One is perihemal system and hemal system. Perihemal system and hemal system. तो ये इनमें ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है जो पेरीहीमल और हीमल सिस्टम में डिफरेंशिएट होगा। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद नर्वस सिस्टम। Nervous system comprises of nerve ring and radial nerve cord. Nerve ring and radial nerve cord होगा। तो इनके अंदर जो है वो नर्व रिंग जो है वो इससे तो इसमें नर्व रिंग बनेगी और डिफरेंट आर्म्स में जो है वो रेडियल नर्व कोड जो है वो निकलेंगी। क्लियर यहाँ तक? इस तरीके से ये नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन्स जो है वो ज़्यादा डेवलप इनमें नहीं होते। उसके बाद बताएंगे इनमें रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, दीज आर यूजुअली यूनिसेक्सुअल एंड दे परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यूनिसेक्सुअल होंगे। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यूनिसेक्सुअल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है वो मैराइन वाटर में ही होगा, यूनिसेक्सुअल होंगे। और उसके बाद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इन विच डिफरेंट एनिमल्स form different type of larva such as bipinnarea larva in Asterias, auricularia larva and Echinopluteus larva, Doliolaria larva. Clear? ये different type के इसमें larva बनेंगे। तो ये इसकी larval form है। इसके बाद next classification of, अब अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग जो लार्वा बन रहे हैं, जिसके अंदर आपने देखा किसी में जो है वो बाइपिनेरिया बन रहा है, किसी में ओरिकुलेरिया लार्वा, इकाइनोप्लूटियस, ओफियोप्लूटियस। दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ लार्वा फॉर्म इन डिफरेंट एनिमल्स। क्लियर? नाउ वी स्टार्ट क्लासिफिकेशन ऑफ इकाइनोडर्मेटा। नाउ वी स्टार्ट क्लासिफिकेशन ऑफ इकाइनोडर्मेटा। तो इकाइनोडर्मेटा में क्लासिफिकेशन करेंगे तो इकाइनोडर्म्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 क्लासेस। क्लियर? हाँ बेटा, अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इकाइनोडर्मेटा। तो इकाइनोडर्मेटा के जनरल कैरेक्टर्स के बाद स्टडी कर रहे हैं क्लासिफिकेशन। इकाइनोडर्मेटा एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 क्लासेस। दीज आर एस्टेरोइडिया, Ophiuroidea, Echinoidea, Holothuroidea and Crinoidea. Clear? These animals are classified on the basis of their body shape and presence of pedicellary and arms. Clear? First of all, we describe about the Asteroidea. Their body shape is flat and star-shaped. In Ophiuroidea, their body is snake-like body and brittle body. इसके साथ साथ snake-like body होने के साथ साथ जो है वो कैसी होती है, इनमें brittle body होती है, जो एक छोटी सी अगर इसके ऊपर जो है
वो हर्ट हो जाता है या प्रेशर लग जाता है तो बॉडी ब्रिटल होने के कारण जो है वो एकदम टुकड़ों में टूट जाती है, तो ये ब्रिटल स्टार भी कहेंगे इनको। एंड दीज आर ऑल्सो सर्पेंट स्टार। क्लियर? तो दीज आर सर्पेंट स्टार और ब्रिटल स्टार ड्यू टू देयर ब्रिटल नेचर and their body shape is snake like body, and in Echinoidea these are disc like body। Echinoidea में disc like body होती है ऐसे, तो इस टाइप से जो है वो इनकी disc like body होगी जिसमें ऐसे ambulacral groove होगी। ये इसमें जो है वो ambulacral groove present होती है ऐसे, but they have no arms in their body। Clear? तो इसमें ये disc like body होगी एंड होलोथुरोइडिया में ये सिलिंड्रिकल बॉडी होती है। होलोथुरोइडिया की बॉडी ऐसे सिलिंड्रिकल बॉडी होगी और इनमें टेंटिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? तो ये इसमें डिस्क लाइक बॉडी, इसमें सिलिंड्रिकल बॉडी एंड दे हैव कप लाइक बॉडी। क्लियर? तो क्रिनोइडिया की बॉडी शेप जो है वो कप लाइक बॉडी होगी। नेक्स्ट, इन एस्टेरॉइडिया दे हैव 5 अनब्रांच्ड आर्म्स। 5 आर्म्स होगी जैसे स्टारफिश में होता है, तो स्टारफिश में स्टेप से जो है एक इनके अंदर जो है वो एक कैरेक्टर इसमें ध्यान रखें कि इनमें ऑटोटोमी का कैरेक्टर भी होता है। ऑटोटोमी मीन्स ये एनिमी से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो क्या करते हैं, अपनी आर्म्स जो है या अपने किसी बॉडी पार्ट को जो है वो अपने से सेपरेट कर देते हैं, जिससे वो एक तरीके से जो है वो ये काउंसलिंग टाइप की जो है या गुमराह करना इस टाइप की मिमिक्री शो करते हैं। तो ऑटोटोमी में क्या कर रहे हैं, ये अपनी बॉडी का कुछ पार्ट तोड़कर या सेपरेट करके जो है वो अलग छोड़ देते हैं, तो एनिमी उसी में उलझा रह जाता है और ये वहां से भाग जाते हैं। क्लियर? यहाँ तक इस प्रॉपर्टी को कहेंगे ऑटोटोमी। तो ये प्रॉपर्टी भी इकाइनोडर्मेटा में पाई जाती है। क्लियर यहाँ तक? तो नेक्स्ट, दे हैव अनब्रांच्ड आर्म्स एंड ओफियूरोइडिया हैव 5 branched arms। Clear? And in Echinoidea they have no arms in their body। arms नहीं होगी, disc like body होती है, ambulacral grooves में present होती हैं। Clear? Next, in Holothuroidea they have no arms but they have tentacles around their mouth। Clear? तो माउथ के अराउंड में जो है वो टेंटिकल्स प्रेजेंट है लेकिन आर्म्स एब्सेंट होगी। Clear? And Crinoidea also have 5 arms। Clear? Next, Pedicellari। Pedicellari are minute pincer-like structure found in their skin। It is present in Asteroidea। तो Pedicellari जो है वो इनकी आर्म्स पे, इनकी स्किन पे जो है वो पिंसर लाइक माइन्यूट अपर्चर्स होते हैं, और ये माइन्यूट प्रोसेस होते हैं जो इनके अंदर जो डेब्रिस होते हैं, इनकी बॉडी के ऊपर जो डेब्रिस होंगे उन डेब्रिस की क्लीनिंग या उनको रिमूव करने के लिए हेल्प करती हैं। तो ये पेडिसिलरी एस्टेरॉइडिया में पेडिसिलरी प्रेजेंट होगी, ओफियूरोइडिया में एब्सेंट पेडिसिलरी, इकाइनोइडिया में पेडिसिलरी प्रेजेंट, एंड इन होलोथुरोइडिया पेडिसिलरी एंड स्पाइंस बोथ आर एब्सेंट। तो इनकी स्किन में स्पाइंस भी नहीं होते। तो होलोथुरोइडिया की जो स्किन होती है वो थिक एंड लेदरी स्किन होती है जिसमें स्पाइंस भी नहीं होते और पेडिसिलरी भी एब्सेंट होगी। क्लियर? और क्रिनोइडिया में पेडिसिलरी, स्पाइंस एंड एम्बुलेक्रल ग्रूव तीनों ही एब्सेंट होती हैं। इनकी आर्म्स के अंदर एम्बुलेक्रल ग्रूव भी नहीं होती। क्लियर? यहाँ तक पेडिसिलरी और स्पाइंस भी इसमें एब्सेंट होंगे। क्लियर? तो ये इसमें हो गए। उसके बाद लार्वल फॉर्म, एक होलोथुरिया हैव क्लोइकल ट्री फॉर देयर रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के लिए इनके अंदर क्लोइकल ट्री होता है, तो इसमें क्लोइका भी प्रेजेंट होगा। क्लियर? यहाँ तक एक लार्वा एस्टेरियस में, एस्टेरॉइडिया में लार्वा होता है बाइपिनेरिया और ब्रेकियोलेरिया लार्वा, ओफियोरोइडिया में ओफियोप्लूटियस लार्वा, इकाइनोइडिया में इकाइनोप्लूटियस लार्वा और होलोथुरोइडिया में ओरिकुलेरिया लार्वा बनता है, क्रिनोइडिया में डोलियोलेरिया लार्वा बनते हैं। क्लियर? यहाँ तक ये इसके एग्जाम्पल है। इसमें एस्टेरियस या स्टारफिश, पेंटासिरोस, सी पेंटागन, इट इज हार्मफुल फॉर पर्ल इंडस्ट्री।
सी पेंटागन या पेंटासिरोस जो है वो क्या करता है, पर्ल ऑयस्टर जो होते हैं उनको खत्म कर देता है। तो पर्ल ऑयस्टर को खत्म करता है, तो पर्ल ऑयस्टर जो है वो किसके लिए होते हैं, पर्ल प्रोडक्शन के लिए होते हैं। तो ये पर्ल इंडस्ट्री के लिए बहुत ही हार्मफुल इकाइनोडर्मेटा है। क्लियर यहां तक। एक ओफियोथ्रिक्स और ओफियूरा। ओफियूरा कॉमन नेम ब्रिटल स्टार, इसमें एग्जाम्पल होंगे इकाइनस और क्लाइपियस्टर। इकाइनस का कॉमन नेम सी अर्चिन। इट ऑल्सो हैव एरिस्टोटिल लैंटर्न इन देयर माउथ। तो इनके अंदर जो है वो एक एरिस्टोटिल लैंटर्न करके जो है वो इनमें एक मैस्टिकेटिंग ऑर्गन जो है वो इनकी माउथ में प्रेजेंट होगा। तो एरिस्टोटिल लैंटर्न की प्रेजेंस केवल इकाइनोइडिया का स्पेसिफिक कैरेक्टर है। क्लियर यहां तक। तो ये एरिस्टोटिल लैंटर्न इसमें प्रेजेंट होंगे। इसमें एग्जाम्पल बता दिया आपको, इकाइनस या सी अर्चिन। दूसरा एग्जाम्पल क्लाइपियस्टर या केक अर्चिन। क्लियर यहां तक। तो ये सी अर्चिन और केक अर्चिन। इसमें एग्जाम्पल होलोथुरिया, कुकुमेरिया। कुकुमेरिया कॉमन नेम सी कुकुम्बर। कुकुमेरिया कॉमन नेम सी कुकुम्बर। इसमें एग्जाम्पल एंटीडोन, कॉमन नेम सी लिली। एक नियोमेट्रा, कॉमन नेम फेदर स्टार। क्लियर। इट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ phylum Echinodermata. Clear? Now we start next and last phylum of non-chordata. It is the Hemichordata. Next, last phylum is Hemichordata. Next phylum, Hemichordata. Hemichordata animals have the character of both type of animals such as chordata as well as non-chordata. Clear? So they have half chordate characters. So Batson termed the name Hemichordata. Clear? ये Hemichordata term जो है वो किसने दी थी, बैटसन ने, ड्यू टू द half chordate characters. Clear? In earlier classification, hemichordates are included in phylum Chordata as their subphylum, but in later classification, hemichordates again placed in phylum placed in non-chordata as their separate phylum. Clear यहां तक। स्टार्ट में हेमिकोर्डेटा को कोर्डेटा में क्यों प्लेस किया गया, क्यों इंक्लूड किया, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टोमोकोर्ड और बक्कल डाइवर्टिकुलम, स्टोमोकोड और बक्कल डाइवर्टिकुलम in their collar part, स्टोमोकोड एंड बक्कल डाइवर्टिकुलम। इस बक्कल डाइवर्टिकुलम या स्टोमोकोड की अपीयरेंस के कारण, इसकी प्रेजेंस के कारण जो है वो शुरू में हेमिकोर्डेटा को किसमें इंक्लूड कर दिया था, कोर्डेटा फाइलम में, जिसकी अपीयरेंस जो है वो नोटोकोड की तरह होती थी। तो नोटोकोड लाइक अपीयरेंस के कारण जो है वो इनको कोर्डेटा में प्लेस कर दिया। बट आफ्टर द डिटेल स्टडी ऑफ हेमिकोर्डेट्स they are included in non-chordata as a separate phylum. Clear? They also have pharyngeal gill slits like chordates. Clear? But most of the characters they have are non-chordate character. So hemichordates are included in non-chordata and placed as a separate phylum of non-chordata. Clear? जनरल कैरेक्टर हेमिकोर्डेट्स में, जनरल कैरेक्टर अगर आप देखें तो जनरल कैरेक्टर्स
फर्स्ट हैबिटेट, हैबिटेट में क्या बताएंगे, दीज आर मैराइन एंड burrowing animals, they were found in marine water and they found in burrow formation. Clear? So also found in burrow and these are marine animals. It is the habitat. Clear यहाँ तक? तो habitat and habitat के according these are marine and burrowing animals or mostly solitary animals. Clear? Next level of body organization, organ system level of body organization after Aschelminthis. Clear? तो Aschelminthis to chordates सारे organ system level of body organization. Now next germ layer and symmetry. According to germ layer these are triploblastic and according to symmetry bilateral symmetrical. Clear यहाँ तक? तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड बाइलेटरल सिमेट्रिकल. उसके बाद इनमें नेक्स्ट जो है वो सिलोम, सिलोम के अकॉर्डिंग दीज आर एंटेरोसिलोमेट, सिलोम के अकॉर्डिंग दीज आर एंटेरोसिलोमेट एंड ड्यूटेरोस्टोम्स, एंटेरोसिलोमेट एंड ड्यूटेरोस्टोम्स. तो ये एंटेरोसिलोमेट होंगे और ड्यूटेरोस्टोमिया होंगे, एंटेरोसिलोमेट एंड ड्यूटेरोस्टोम्स. उसके बाद नेक्स्ट और क्या बताएंगे इनमें, एंटेरोसिलोमेट एंड ड्यूटेरोस्टोम्स है. उसके बाद बॉडी प्लान, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, इट मीन्स ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान. नेक्स्ट ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान. तो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होगा. उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या बताएंगे इसमें, ये बॉडी शेप, बॉडी लॉन्ग सिलेंड्रिकल एंड वर्म लाइक बॉडी, लॉन्ग सिलेंड्रिकल एंड वर्म लाइक बॉडी, लॉन्ग सिलेंड्रिकल एंड वर्म लाइक बॉडी. Body divisible into three parts. One is proboscis, then collar part, and after it trunk. Clear? ये इसमें collar part होगा ऐसे. तो ये इसमें proboscis, collar and trunk. तो body divisible into three parts. Body divisible into three parts, proboscis, collar and trunk. Clear? तो body divisible into three parts and their coelom also differentiate into three parts due to their body division. Clear? तो coelom, enterocoelom, enterocoelom also differentiate into three parts. Body divisible into proboscis, collar and trunk. तो ये proboscis, collar and trunk में body divide होगी, differentiate होती है. उसके बाद enterocoelom also divide into three parts according to their body division. It is procele, mesocele and metacele. Three प्रोसील, मेसोसील एंड मेटासील. तो ये इसमें तीन पार्ट में इनकी सिलोम डिवाइड हो जाती है, प्रोसील, मेसोसील एंड मेटासील. नेक्स्ट डाइजेशन के लिए जो है वो इनमें कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल विच में बी स्ट्रेट और कोल्ड एलिमेंट्री कैनाल, complete elementary canal which may be straight and coiled, elementary canal. तो ये complete elementary canal होगी.
उसके बाद रेस्पिरेशन के लिए जो है वो इसमें गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगे, गिल स्लिट्स in their pharyngeal region, gill slits present for respiration, present in pharyngeal part, तो ये हेमिकोर्डेटा के अंदर ये कोर्डेट कैरेक्टर है कि इनके अंदर फेरेंजियल पार्ट में गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगे, तो गिल स्लिट्स प्रेजेंट इन देयर फेरेंजियल पार्ट, it is their respiratory organ. Next, excretion through single glomerulus, clear? So excretion through single glomerulus, that is proboscis gland. It present in proboscis, so it is proboscis gland, clear? So excretion through single glomerulus or proboscis gland. Next, they have only one layer epidermis in their skin, तो स्किन में only one epidermis present होंगी, dermis absent, only one layer एपिडर्मिस प्रेजेंट होगी, डर्मिस एब्सेंट होगी. इसके बाद नेक्स्ट, स्केलेटन एंड लोकोमोटरी ऑर्गन्स एब्सेंट, स्केलेटन एंड लोकोमोटरी ऑर्गन्स एब्सेंट. नर्वस सिस्टम comprises of nerve ring and ventral nerve cord, clear? Nervous system. Then sexes are separate, male female are separate. Unisexual, it means sexes are separate, तो मेल फीमेल सेपरेट होंगे. यूनिसेक्सुअल है तो सेक्सेस आर सेपरेट. नेक्स्ट, एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का बताएंगे. तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ओपन टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या बताएंगे, ये ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, स्केलेटन हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया. उसके बाद सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. और उसके बाद डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, जिसमें कौन सा लार्वा बनेगा, टोर्नेरिया लार्वा. इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा जिसमें टोर्नेरिया लार्वा बनेगा, विच रिजेंबल विद बाइपिनेरिया लार्वा. तो ये बाइपिनेरिया जो लार्वा होता है उसके जैसा होगा. तो ये इसमें हेमिकोर्डेटा के जनरल कैरेक्टर हो गए. इसके बाद हेमिकोर्डेटा में एग्जाम्पल, हेमिकोर्डेट्स में एग्जाम्पल बेलेनोग्लोसस, कॉमन नेम टंगवॉर्म, बेलेनोग्लोसस कॉमन नेम टंगवॉर्म, और सेकोग्लोसस, These animals are also known as connecting link between hemichordata and chordata. Clear? The complete hemichordates are the connecting link between hemichordata and non-chordata. Clear? Okay बेटा, समझ में आ गया होगा यहाँ तक. ये अपने नॉन कोर्डेटा फाइलम
के सारे फाइलम जो है वो कंप्लीट हो गए। एंड नेक्स्ट लेक्चर में we discuss about the phylum Chordata. Clear? Their specific character, their general character, and their classification. Clear? Okay, bye.